Hello students, this is part 3rd of respiration in plants. In this part, we are going to discuss about the respiratory quotient. Respiratory quotient is the ratio. It is the ratio of volume of CO2 released to the volume of oxygen taken in respiration in a given period of time at a standard temperature and pressure. This is a formula to calculate the RQ value. It is the ratio of volume of CO2 evolved to the volume of oxygen used. Value of RQ varies with the respiratory substrate and their oxidation. Thus, measurement of RQ may give some guide as to the nature of substrate being respired by a particular tissues. तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट सिंपली एक कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में यूज हुई है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई है और कितनी ऑक्सीजन यूज हुई है, इसके रेशियो को हम RQ वैल्यू कहते हैं। जितने भी सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन में यूज हो रहे हैं उनकी RQ वैल्यू अलग अलग आती है। तो RQ वैल्यू के मेजरमेंट से हम ये बता सकते हैं कि किस वक्त किस सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सबसे पहले है RQ ऑफ carbohydrate. When carbohydrates such as hexose sugar like glucose and fructose and starch are respired in the presence of oxygen, the volume of CO2 evolved during the process is equal to the volume of O2 absorbed. Thus, the value of RQ is 1 or unity. Here is the equation of for the oxidation of glucose. Here you can say ये ग्लूकोज है और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स इवॉल्व हो रहे हैं। तो जो इसका RQ वैल्यू होगा ये 6/6 यानी ये यूनिटी होगा। तो किसी भी टाइम में अगर वैल्यू ऑफ RQ मेजर करने पर ये 1 आता है तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट एज ए सबस्ट्रेट यूज हो रहा है। सेकेंड है RQ ऑफ फैट्स. When fats are respiratory substrate, as in case during germination of fatty acid seeds, fats are hydrolyzed to fatty acid and glycerol. The complete oxidation of glycerol results in the RQ of 0.86. The fatty acid being poorer in oxygen and requires more oxygen molecule for complete oxidation as compared to CO2. Therefore, oxygen is more and CO2 is less and the RQ value is less than unity. यहाँ आप देख सकते हैं कि there are 51 carbon in this fat, 98 हाइड्रोजन and 6 ऑक्सीजन। अगर हम कार्बन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर 51 कार्बन है, 98 हाइड्रोजन है, उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन बहुत कम है, इसलिए यहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है कार्बन और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन के लिए। लेकिन जो नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं वो उसका अमाउंट कम है। तो RQ वैल्यू निकालने पर यानी जो रेशियो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, ये 102/145, ये 0.7 इसकी वैल्यू आती है, यानी ये लेस देन यूनिटी है। तो यहाँ पर भी हम किसी भी टाइम अगर RQ वैल्यू मेजर करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर और ये लेस देन यूनिटी आ रही है यानी ये वैल्यू 1 से कम आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर फैट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रेस्पिरेशन में फैट्स एज ए सबस्ट्रेट यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज द RQ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड.
When organic acids are respired, the RQ is more than unity. RQ की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा आती है. This is because the acids are rich in oxygen. Therefore, less amount of oxygen are required and more carbon dioxide are evolved. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि there are many oxygens are present in an acid. So less amount of oxygen are used and more number of CO2 are evolved. तो यहाँ पर भी हम RQ की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे. Here 4 carbon dioxide are evolved and 1 molecule of oxygen are used. So it comes out to be 4. It is more than unity. तो यहाँ पर भी हम RQ की वैल्यू से ये पता कर सकते हैं. अगर वैल्यू ऑफ RQ मेजर करने पे 1 से ज़्यादा आती है, इसका मतलब बॉडी में ऑर्गेनिक एसिड्स एज ए सबस्ट्रेट यूज हो रहा है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में. The significance of determining RQ of plant is that it provides important information about the chemical nature of substrate being respired. यानी RQ की वैल्यू पता करके हम ये बता सकते हैं ईजिली कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर किस सबस्ट्रेट का रेस्पिरेशन हो रहा है. अगर RQ की वैल्यू लेस देन यूनिटी है यानी 1 से कम है तो वहाँ पे प्रोटीन या फैट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है. अगर RQ की वैल्यू मोर देन यूनिटी है यानी RQ की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स का रेस्पिरेशन हो रहा है. अगर RQ की वैल्यू इज़ इक्वल टू 1 के बराबर है, इसका मतलब वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट एज ए सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है.